Hello students, myself Biswajyoti Guruji. In the previous classes we have discussed the very common part of biology, means what is science, from where it has been derived, the definition of biology, from where the term biology has been coined or who coined the term biology, and also we have discussed various applied branches under biology and the pure branches of biology. Also we have discussed organ and organism related branches of zoology. Also we have discussed various various branches of biology and zoology. So today we will start the main core topic of the zoology, that is the animal nutrition. Animal nutrition. ताले एनिमल न्यूट्रिशन माने कौन? सिंपली यदि हम ता डेफिनेशन को देखिबा, न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन व्हिच ऑर्गेनिज्म obtain or make substances essential for growth, tissue repair and to meet their energy requirement. Nutrition is a process, is defined as a process. Nutrition is defined as a process which living organisms obtain or make substances essential for growth, tissue repair and to meet their energy requirement. बुझ पारले? So the nutrition is a process, or we can say nutrition is defined as a process which living organism obtain or make substances essential for growth, tissue repair and to meet their energy requirement. माने कौन? न्यूट्रिशन माने हला किंबा न्यूट्रिशन को सिंपली हमें कहि परिबा एटा गोटे होची प्रोसेस. न्यूट्रिशन माने होची गोटे प्रोसेस जहा द्वारा कि किछि भी गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म ताको इनटेक करिथाय. कहा पई, कोन पई? तीनटा जिंस पई. गोटे होची ग्रोथ पई माने ऑर्गेनिज्म रो बढ़िया पई, टिश्यू रिपेयर पई. टिश्यू रिपेयर माने कोन? धरनियंतु किछि भी हमर कोनोसी पोर्शन रे खंडिया हेबा, त से जो टिश्यू किबा ग्रुप ऑफ सेल को हमको रिपेयर करिया दरकार. ताले रिपेयर करिया हमको कोन दरकार? न्यूट्रिशन दरकार. आ गोटे होची टू मीट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट, माने लिविंग ऑर्गेनिज्म माने को काम करिया पई किछि भी जो एनर्जी दरकार सेटा कोठु आसीबो? सेटा न्यूट्रिशन रो आसीबो. ताहले बुझी पारले न्यूट्रिशन होची गोटे सब्सटेंस जोटा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को दरकार कोन पई? तीनटा मेन जिंस पई, ग्रोथ, टिश्यू रिपेयर and third one is the to meet their energy requirements. Definition of point कहि दोची. Nutrition is defined as a process which living organisms obtain or make substances essential for growth, tissue repair and to meet their energy requirement. बुझि पारले? ताले एइठु हमें आ गोटे पॉइंट पाइलु जे every living organism require food in order to survive. Every living organism requires food in order to survive.
जेति की भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अछंती समस्त को कौन दरकार फूड दरकार कौन पे बंचिबा ताले सिंपली ए डेफिनेशन रु ही हम ए पॉइंट पाइलु ताले ए डेफिनेशन रु आ गोटे पॉइंट हम कौन पाई परिबा न्यूट्रिशन माने कौन सब्सटेंस ना कौन न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट हमको कौन प्रोवाइड करछि एनर्जी प्रोवाइड करछि ताले हम आ गोटे पॉइंट भी लिखि परिबा न्यूट्रिएंट इज अ सब्सटेंस व्हिच प्रोवाइड्स एनर्जी nutrient is a substance which provide energy तो बुझी पाले हमें तीनटा सेंटेंस हमें एटी क्रिएट करछे फर्स्ट होची न्यूट्रिशन रो डेफिनेशन सेई थ्रू हमें आ दुईटा पॉइंट डिराइव करले मन रहा न्यूट्रिशन रो डेफिनेशन न्यूट्रिशन कौन इट इज न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस in which living organism obtain or make substances essential for their growth tissue repair and to meet their energy requirement second point mu kon कहली every living organism require food in order to survive third point mu kon कहली nutrients provide energy or we can say nutrient is a substance which provides energy next jiba न्यूट्रिशन रो वेरियस हमर कोन कोन पॉइंट्स अछि किबा कोन कोन गाइडलाइंस अछि जे कहा द्वारा न्यूट्रिशन रो वेरियस स्टेप्स सिंपली हम कहि परिबा द वेरियस स्टेप्स दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूट्रिएंट्स next we'll discuss the various steps that is present in the nutrition. Nutrition involves basically 5 main steps. First one is the ingestion. Second one is the digestion. Third one is the absorption. Fourth one is the assimilation, and fifth one is the egestion. Nutrition involves mainly 5 steps. First one is the ingestion. Second one, digestion. Third one, absorption. Fourth one, assimilation. Fifth one, or the last one, egestion. ताहले ए जो न्यूट्रिशन आमे प्रोसेस देखुचे न्यूट्रिशन रे केतेटा स्टेप प्रेजेंट अछि न्यूट्रिशन अंडर रे आपनकर टोटल 5टा स्टेप आसीबो न्यूट्रिशन इन्वॉल्व बेसिकली मेनली 5 स्टेप्स फर्स्ट वन इज द ingestion second one is the digestion third one is the absorption fourth one is the assimilation fifth one is the egestion गोटे गोटे पॉइंट हम डिस्कस करिवा फर्स्ट वन इज द ingestion first one is the ingestion माने कोन सिंपली टेकिंग इन ऑफ वेरियस फूड मटेरियल्स खाद्य को सिंपली भीतर को नबा हमें खाइबा किबा हम बॉडी भीतर को जो एंट्री कला से स्टेप को कहा जाए ingestion simply we can say taking in of food materials taking in of simply food बोले हम कर परिबा बुझ परले ingestion माने simply taking in of food second आसेला digestion माने कोन जते बेले हमें खाद्य को नै थाउ किबा माने हमें ingestion करि थाउ
खाद्यटा सब बड़े गोटे कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल हिसाब रे थाए आ सब बड़े ताकू जदी हमें यूज करिया को चाहिबा जोटु कि हमें एनर्जी एक्वायर करि परिबा ताको हमें सिंपली ताको हमें सिंपलर फूड मॉलिक्यूल्स किंबा सिंपलर मॉलिक्यूल्स को हमको ब्रेक डाउन करबा दरकार ताहले डाइजेशन माने कोन ब्रेकिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स into simpler forms is known as digestion. Breaking of complex food particles into simpler forms. बुझले डाइजेशन माने ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स इनटू सिंपलर फॉर्म्स जेता हम किसी भी खाद्य खाइ तो सेटा कॉम्प्लेक्स फॉर्म रे थाए सिंपलर फॉर्म रे न थाए से कॉम्प्लेक्स फॉर्म को हमें डाइजेशन प्रोसेस द्वारा हम बॉडी रे डाइजेशन प्रोसेस कंटिन्यू हुए जा द्वारा कि कोन हेताए डाइजेशन द्वारा से जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को से सिंपलर फॉर्म रे ब्रेक डाउन कर सिंपलर फॉर्म रे ब्रेक डाउन हेले ही से आगो को प्रोसीजर टा कंटिन्यू हे परिबे ताले फर्स्ट स्टेप हम कोन जानले टेकिंग इन ऑफ फूड मटेरियल्स इज नोन एज इंजेशन सेकंड वन इज द डाइजेशन मींस ब्रेकिंग डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर फॉर्म्स थर्ड वन इज द एब्जॉर्प्शन माने कोन एब्जॉर्प्शन माने होची द टेकिंग इन of the simpler food molecule taking in of the simpler food molecule into the circulatory media taking in of simpler food molecules into सर्कुलेटरी मीडिया माने कौन जते बेल भी फूड हमर कॉम्प्लेक्स रो सिंपल फॉर्म को ब्रेक डाउन हैला सेटा को हमर सर्कुलेटरी मीडिया फॉर एग्जांपल आवर ब्लड रे चारि आडे सेटा कोन हेतिबा दरकार सब बडे सेटा खेली जायतिबा दरकार बुझि परले जोटी ब्लड अछि सेठी आपनकर फूड रो सिंपलर फॉर्म रो प्रेजेंट थिबा दरकार ताले सेटा का द्वारा हबो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस द्वारा माने टेकिंग इन ऑफ द सिंपलर फॉर्म ऑफ द फूड मॉलिक्यूल इनटू द सर्कुलेटरी मीडिया नेक्स्ट इज द एसिमिलेशन माने कोन रीयूटिलाइजेशन ऑफ द एब्जॉर्ब्ड फूड रीयूटिलाइजेशन of absorbed food जहाँ भी हमर फूड किंबा सिंपलर फॉर्म्स गुटाको ब्लड स्ट्रीम रे एब्जॉर्ब हिची ताकू केमती रीयूटिलाइज करके हमको एनर्जी प्रोवाइड करिवो सेटा काम होची कार एसिमिलेशन जेंते हमें आगुरु पढिचे न्यूट्रिशन रो काम कोन इट इज अ प्रोसेस which obtain or make substances essential for growth tissue repair और energy requirement ताले हमको एनर्जी टा कोठ आसे जते बेले फूड मॉलिक्यूल गुडा को ब्लड स्ट्रीम रे से एब्जॉर्ब करनबो सेइठु हमरो एनर्जी प्रोवाइड हेता किबा एनर्जी हमरो प्रोड्यूस हेता ताले एसिमिलेशन माने कोन रीयूटिलाइजेशन ऑफ द एब्जॉर्ब फूड ब्लड स्ट्रीम रे आपनकर फूड मॉलिक्यूल जो सिंपलर फॉर्म गुडा के एब्जॉर्ब हिज ताले सेइठु हमको केमती एनर्जी हमको मिलिबो सेइटा होचे एसिमिलेशन प्रोसेस माने रीयूटिलाइजेशन ऑफ द सिंपलर फूड मॉलिक्यूल्स बुझ परले दैट इज नोन एज एसिमिलेशन लास्ट पॉइंट इज योर इजेशन माने कोन एलिमिनेशन ऑफ द वेरियस अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स इज नोन एज इजेशन एलिमिनेशन of various undigested food particles
is known as egestion. Egestion माने हमें कौन जानिया पहले elimination of undigested food particles is known as egestion, जोटा कि हमर स्टूल आकार रे हमर एलिमिनेशन हेइ थाए सब बेले जहाँ भी आम खाद्य खाई था जोटार कि आमर जहाँ भी जी दरकार से आमर डाइजेशन हो जाए जी डाइजेशन हो पारे से अनवांटेड आमर डाइजेशन कि अनवांटेड आमर वेस्ट प्रोडक्ट बेले से एलिमिनेट हो जाए किंबा एक्सक्रेट किंबा आमर स्टूल आकर से एलिमिनेट हो जाए सब बेले सो दैट इज कॉल्ड इजेशन माने एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स इज नोन एज इजेशन। ताहले सिंपली हमें जानिया पहले न्यूट्रिशन रो डेफिनेशन हमें जानले न्यूट्रिशन रो केतेटा स्टेप्स प्रेजेंट अछि सेटा भी हमें जानिया पहले न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स केतेटा स्टेप्स इट इन्वॉल्व्स बेसिकली और मेनली 5 स्टेप्स। फर्स्ट वन इज द ingestion taking in of food materials. Second one is the digestion breaking down of the complex food molecule into the simpler forms. Third one is the absorption taking in of the simpler food molecules into the circulatory media kimba bloodstream. Assimilation reutilization of the absorbed food jadwar ke हमको energy provide होता है. Last one is the egestion. Egestion माने कौन elimination of the undigested food particle is known as egestion. पांचटा पॉइंट मन रहिला ingestion, digestion, absorption, assimilation और egestion. नेक्स्ट एबे हमें डिस्कस करिबा व्हाट आर द वेरियस ऑर्गेनिक एंड द इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूट्रिशन। सबले जानि थांतु न्यूट्रिशन रे ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी प्रेजेंट अछि इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी प्रेजेंट अछि। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक माने कोन ऑर्गेनिक आपण केमिस्ट्री रे पढिथिबे कि आगु गले पढिबे जदि कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट अछि ताको हम ऑर्गेनिक कहबा जदि नाही ताको हम इनऑर्गेनिक बोली कहबा। ताले द ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एनिमल न्यूट्रिशन कोन कोन व्हाट आर द ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स एंड फैट। व्हाट आर द इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स दोज आर द मिनरल एंड द वाटर। तो सिंपली आज हम डिस्कस करिवा द वेरियस ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द न्यूट्रिशन जोटा के होची कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स और फैट। हमें डिटेल तार गोटे गोटे पॉइंट बाय पॉइंट हम डिस्कस करिया बे कार्बोहाइड्रेट फर्स्ट डिस्कस करिया तापर प्रोटीन डिस्कस करिया तापर फैट डिस्कस करिया। So now we'll discuss our first organic constituents of nutrition, that is carbohydrate. मैं आपको कहितली nutrients consist of organic constituents and also various inorganic constituents. The various organic constituents of nutrition is or nutrient is carbohydrates, proteins and fats, and various inorganic nutrients are minerals and water. तो फर्स्ट रे हमें ऑर्गेनिक ऊपर डिस्कस करिबा देन हमें लेटर ऑन इनऑर्गेनिक को जिबा। आज ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स उडा हमें डिस्क्राइब करिया भल से पूरा। तो ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स रे फर्स्ट हमर जहां हमर प्रेजेंट अछि इन द न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट इट इज द कार्बोहाइड्रेट। फर्स्ट पॉइंट कार्बोहाइड्रेट अंडर रे जो फर्स्ट पॉइंट आसीबो सेटा होची इट इज द मेजर fuel which provides energy. It is the major fuel which provides energy. तो फर्स्ट पॉइंट हमें कौन जाने पहले इट हंस गोटे मेजर फ्यूल जे कि हमको एनर्जी प्रोवाइड करे। फ्यूल माने कौन जहाँ भी हमको जोड़ा कि हमको कंजम्पशन करिया पड़े जोड़ा कि जेमति कि धर नियंतु बाइक केस रे हो हमें फ्यूल पकेला गाड़ी हम चलुछ गैस केस रे हो फ्यूल थिलारु हमें रोसई कर परछे ता माने कौन किछि भी जिंस जहाँ द्वारा कि हमें किछिटा वर्क करि परिबा हमको काम करिया को से एनर्जी प्रोवाइड करियो। सेही भलिया हमको किछि भी जहाँ जेहेतु एनर्जी दरकार से एनर्जी रो मेन सोर्स कोटा
फर्स्ट सोर्स कोटा और वेरियस सोर्स अछि प्रोटीन भी हमको एनर्जी दोछि फैट भी हमको एनर्जी दोछि किंतु जोटा मेन सोर्स दैट प्रोवाइड्स अस एनर्जी इज द कार्बोहाइड्रेट सेट पे हम कह परिबा इट इज द मेजर फ्यूल व्हिच प्रोवाइड्स एनर्जी it is the major fuel which provides energy second point hochi what are the various constituents of the carbohydrate basically kon present अछि it consists of carbon hydrogen and oxygen कौन प्रेजेंट अछि बेसिकली कार्बोहाइड्रेट रे इट कंसिस्ट ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ग्लूकोज प्रेजेंट रही गला ताले कोन excess of glucose if present inside the body it is converted into fat which act as the reserve food material excess glucose if present converted into fat which acts as reserve food material धरनियंतु जेतिकी अमाउंट ऑफ ग्लूकोज हमर प्रेजेंट थिबा दरकार ताठू अधिक अमाउंट ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट अछि ताले बॉडी हमर कोन करबो से ग्लूकोज को फैट रे कन्वर्ट करनबो आ ताको रिजर्व भाबे ताको स्टोर करिकने रखिदियो जते बडे एनर्जी हमको दरकार थिबो आ कार्बोहाइड्रेट हम पकरे एडिक्वेट अमाउंट नथिबो माने जेतिकी अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट थिबा कथा सेतिकी जदी नथिबो ताले से कोन करबो से फैट को पुणी ग्लूकोज को कन्वर्ट करबो आ हमको एनर्जी प्रोवाइड करबो ताले हम थर्ड पॉइंट हम कोन जाने पहले फोर्थ पॉइंट excess glucose if present is converted into fat which acts as reserve food material reserve माने कोन रिजर्व हेक अछि जेता हमको दरकार से सेते बेले हमको एनर्जी प्रोवाइड करबो बुझि पाले फिफ्थ पॉइंट होछि the physiological fuel value of carbohydrate is 4 kilocalorie per gram physiological fuel value is 4 kilocalorie per gram माने कौन 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट हमको अराउंड 4 किलो कैलोरी माने 4000 कैलोरी रो एनर्जी हमको प्रोवाइड करि थाए बुझ पाले सो फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू माने कौन 1 gram of carbohydrate provides how much energy so we can say the physiological fuel value of carbohydrate is 4 kilocalorie or 4000 calorie last point that comes under carbohydrate is how much is the daily intake of the carbohydrate प्रतिदिन हमको केतिक अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट निहाती दरकार so the daily intake or the daily requirement of the carbohydrate in adult case is approximately 500 grams per day daily intake in case of adults is 500 grams per day तो 6 पॉइंट हम कौन जाने पहले प्रतिदिन हमको केती की अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट दरकार तो अराउंड 500 ग्राम पर डे तो बुझी पाले कार्बोहाइड्रेट अंडर रे केतेटा पॉइंट हम जानिया पहले नेक्स्ट विल डिस्कस द नेक्स्ट ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द न्यूट्रिएंट दैट इज कॉल्ड द प्रोटीन फर्स्ट वी हैव डिस्कस्ड द वेरियस पॉइंट्स अंडर द कार्बोहाइड्रेट रे हमें बहुत गुडा पॉइंट्स डिस्कस कले एबे हम डिस्कस करिबा द वेरियस पॉइंट्स दैट कम्स अंडर प्रोटीन
प्रोटीन्स रो फर्स्ट पॉइंट हैला प्रोटीन इज द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट मन रखंतु प्रोटीन इज द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट व्हिच कंसिस्ट ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन बुझी पाले कार्बोहाइड्रेट हम केस रे कोन थिला कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन बट प्रोटीन केस रे हम प्रेजेंट थाए कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन फर्स्ट पॉइंट है इट इज द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल consists of carbon hydrogen oxygen and nitrogen बुझी पाले besides carbon hydrogen oxygen and nitrogen less amount of phosphorus sulfur iodine and iron is also present एटा मन रखंतु the basic constituents होची कोन कोन carbon hydrogen oxygen and nitrogen but besides that less amount of very minor amount of phosphorus sulfur iodine iron is also present second point what is the basic unit or the simplest form of the protein the basic unit of the protein is called amino acid जेंति कि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज थिला प्रोटीन केस रहबो हमरो एमिनो एसिड the basic unit of protein is amino acid very important point मन रखिबे बुझि पाले नेक्स्ट ताले हम कोन जानिया पाइले the basic unit of protein होची amino acid बहुत तरह का amino acid मिसिले गोटे प्रोटीन फॉर्मेशन हेता ताले गोटे amino acid आ गोटे amino acid से तो केमिति बाइंड अप हेता by the means of peptide bond the bond that is present in between the two amino acid is known as peptide bond बुझि परले ताले peptide bond केमिति भाबे बाइंड करके रखिता सब बेले जानथांतु गोटे एमिनो एसिड रो दीटा एंड अछि गोटे कार्बोक्सिल एंड आ गोटे एमिनो एंड गोटे पटे तार जो जहां भी हमरो स्ट्रक्चर थाए एमिनो एसिड रो गोटे पोर्शन गोटे एंड रे तार थाए कार्बोक्सिल ग्रुप आ गोटे एंड रे तार थाए एमिनो ग्रुप मु त स्ट्रक्चर कर दोछि प्रेजेंट करछि এটা হচ্ছে বেসিক স্ট্রাকচার অফ অ্যামিনো অ্যাসিড দিস ইজ দ্য স্ট্রাকচার অফ অ্যামিনো অ্যাসিড বুঝি পারলে তাহলে কেমতি তা স্ট্রাকচার তাহলে মধ্যে কার্বন রহিব हमर r মানে কোন r ইজ দ্য ভেরিয়েবল এটা ভেরিয়েবল মানে চেঞ্জ হই পারে ताले गोटे पोर्शन पटे रहले हमर एमोनिया एमिनो ग्रुप माने NH2 एमिनो ग्रुप present in one side of the amino acid and the carboxyl group COOH is present on the other side of the amino acid ताले गोटे amino acid आ गोटे amino acid सहित केमिति बाइंड अप करछि गोटे एग्जांपल करछि आपन भाबे एई जिंसो को एटा गोटे amino acid आ गोटे amino acid थिबो ता मझे हमर पेप्टाइड बॉन्ड रहबो सेटा हम करछि एन एच तार एठी कोन कोन प्रेजेंट हमर रहला एठी गोटे हमर एच रहला एठी हमर सी रहला दिस इज द वेरिएबल दिस इज द O दिस इज द OH बुझि परले ताले बॉन्ड एबे केमति फॉर्मेशन हो एटा गोटे एमिनो एसिड एटा गोटे एमिनो एसिड
देखो एतिकी गोटे एमिनो एसिड एतिकी गोटे एमिनो एसिड बुझी पाले ताले एई जो दीटा एमिनो एसिड मझिरे जो बॉन्ड फॉर्मेशन हबो दैट इज कॉल्ड द पेप्टाइड बॉन्ड ताले पेप्टाइड बॉन्ड केमती फॉर्मेशन हबो देखिचंती एठी गोटे H अछि एठी गोटे OH अछि ए जो मॉलिक्यूल टा कोन हबो एटा कोन हे जिवो H2O ए जो H2O मॉलिक्यूल टा रिमूव हे जिवो कोन हे जिवो रिमूव हे जिवो H2O इज रिमूव्ड है ए जो H2O टा रिमूव हे जिवो ता पर से कोन फॉर्मेशन करबो हमरो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन कर दो नेक्स्ट स्टेप टा देखो मैं आउथरे कह दोचे एटा हला आपनकर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड माने कोन कार्बन रहला हाइड्रोजन बॉन्ड एटा गोटे हाइड्रोजन अटैच हेची एटा होची वेरिएबल माने R एपट रहला आपनकर एमिनो ग्रुप माने N रहला बीटा H रहला एपट रहला आपन कार्बोक्सिल ग्रुप C टा डबल बॉन्ड रहइबो हमर O सहित C OH सहित बाइंड अप करछि एटा भी सेमते अछि ताले हमर देखंदु दुईटा एंड प्रेजेंट अछि दिस वन इज द एमिनो एंड दिस वन इज द कार्बोक्सिल एंड बुझि पाले ताले पेप्टाइड बॉन्ड कोठी एटी फॉर्मेशन ला पेप्टाइड बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन बिटवीन द टू एडजेसेंट एमिनो एसिड ऑन ईदर साइड एक तो हमरो एमिनो एंड रे प्रेजेंट रहइबो एमिनो एंड रे हमरो बाइंड अप हबो किंबा कार्बोक्सिल एंड रे बाइंड अप हबो माने गोटे एमिनो एसिड रो देखंतु एपटे रहि गेला आपनकर एमिनो एंड एपटे रहि गेला कार्बोक्सिल एंड सेमती आउ गोटे जदि एमिनो एसिड देखिबा एपटे रहिला आपनकर एमिनो एंड दिस वन इज द योर कार्बोक्सिल एंड so the peptide bond is always formed between one carboxyl end and the amino end of the adjacent amino acid बुझि पाले सेमती यारो एमिनो एंड सहित आउ गोटे जो हमरो एमिनो एसिड थिबो तारो को एंड ता कुसी पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करबो कार्बोक्सिल ग्रुप एंड बुझि पाले तले सब बेले जानंतु गोटे एमिनो एसिड रो कार्बोक्सिल ग्रुप सहित आउ गोटे एमिनो एसिड कि एडजेसेंट माने साइड जो एमिनो एसिड थिबो तारो एमिनो ग्रुप ता सब बेले अटैच हेकिना रहइबो ता परे से पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन कर परिबो बुझि पाले देखो एटा रहले आपनकर एमिनो एसिड एपटे आउट एमिनो एसिड एटा हला आपनकर कार्बोक्सिल ग्रुप एटा रहले आपनकर एमिनो ग्रुप बुझि पाले ताले हमर एट कोन फॉर्मेशन हला H आ OH रहला ए जो H OH माने कोन H2O माने कोन वाटर से ए वाटर को रिमूव करनबो वाटर इज रिमूव्ड से वाटर जगह रे एबे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हबो मो नेक्स्ट स्टेप रे करछि NHH रहला CRH रहला एटा C डबल O बॉन्ड O रहला एपटे देखंतु H रहला हमरो NH रहला तापरे जो गोटे H थिला सेटा रिमूव हे हिची यार जो OH थिला सेटा भी रिमूव हे हिची एट रहि गेला आपनकर पेप्टाइड बॉन्ड एपटे आसंतु कोन सेमती प्रेजेंट रहला CHR एपटे रहि गेला आपनकर CO डबल बॉन्ड O आ OH ता माने एठी हमरो N तळे कोन प्रेजेंट थिला गोटे H प्रेजेंट थिला C रो एठी कोन प्रेजेंट थिला OH प्रेजेंट थिला OH और H रिमूव हे गेला माने कोन वाटर रिमूव हे गेला वाटर रिमूव हे किना एठी गोटे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हे गेला तो एटा गोटे एमिनो एसिड एटा भी गोटे एमिनो एसिड सेमिति पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा से बाइंड हे किना
से गोटे चेन फॉर्मेशन करता है जहा द्वारा कि हमर प्रोटीन फॉर्मेशन होता है बुझि पाले फर्स्ट होची इट इज द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट कंसिस्ट ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन and also some little amount of phosphorus, iodine, sulfur and also iron. The basic unit of the protein is amino acid. Amino acid structure mo कहली आपन को C H रहइबो आ गोटे R माने वेरिएबल गोटे पोर्शन रे रहइबो हमर गोटे एंड रे आपन को रहइबो एमिनो ग्रुप आ गोटे एंड रे रहइबो आपन को COOH माने कार्बोक्सिल ग्रुप इन द वन एंड एमिनो ग्रुप एट द अदर एंड पेप्टाइड बॉन्ड माने कोन गोटे एमिनो एसिड को आउरे एमिनो एसिड बाइंड अप करिया पे हमको जो बॉन्ड दरकार सेटा होची पेप्टाइड बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड ऑलवेज बाइंड द वन कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन एमिनो एसिड इज बाइंड टू द एमिनो ग्रुप ऑफ द एडजेसेंट एमिनो एसिड जहा द्वारा कि गोटे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हबो बाय द रिमूवल ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल आउ दुईटा हमर पॉइंट रहला कोन गोटे होची हमर केते प्रकार हमरो एमिनो एसिड प्रेजेंट अछि आउ व्हाट आर द फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू एंड द डेली इनटेक ऑफ प्रोटीन नेक्स्ट केतरा हम पॉइंट डिस्कस करिवा व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड प्रेजेंट एमिनो एसिड को बेसिकली हमरो टू टाइप्स से डिवाइड करा जायछि one is the essential amino acid other one is the non essential amino acid को basically दीटा वे रे डिवाइड करा जायछि one is the essential amino acid other one is the non essential amino acid essential amino acid माने कोन non essential amino acid माने कोन essential amino acid are the amino acid which our body cannot synthesize. It can be always be intake from the outer any food substance or from the outer environment. सब बड़े essential amino acid हमें हम बॉडी रे तैयारी करि परिबा नाही ताको हमें कोनोसी फॉर्म रु बाहर किंबा आउटर एनवायरनमेंट रो हमें ताको इनवर्ड को हमें नहीं पारु जहा द्वारा कि हमें essential amino acid तैयार करि परिबा essential under the first point asibo it cannot be synthesized in our body it is taken always in the or various form of the food it is taken in the form of food example कोन बेसिकली हां केतेटा हमर एसेंशियल एमिनो एसिड प्रेजेंट अछि 8टा एमिनो एसिड हमर एसेंशियल प्रेजेंट अछि एग्जांपल कोन ल्यूसिन आइसोल्यूसिन एटसेट्रा तो बेसिकली केतेटा हमर एसेंशियल एमिनो एसिड प्रेजेंट अछि 8 एसेंशियल एमिनो एसिड प्रेजेंट एग्जांपल ल्यूसिन आइसोल्यूसिन एटसेट्रा और बहुत अच्छी मिथियोनाइन अच्छी प्रेजेंट अच्छी बहुत गुडा अच्छी 8टा प्रेजेंट अच्छी एग्जांपल दीटा मन रखंतु ल्यूसिन आ आइसोल्यूसिन नेक्स्ट पॉइंट कोन हमरो एसेंशियल एमिनो एसिड अंदर आसिला हमरो तीनटा पॉइंट हम देखिले फर्स्ट इज द इट कैनॉट बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी फर्स्ट पॉइंट सेकंड होची इट इज ऑलवेज टेकन इन द फॉर्म ऑफ फूड और द आउटर हमरो सोर्स हमें पाई परिबा हम एसेंशियल एमिनो एसिड एग्जांपल हला ल्यूसिन किंबा आइसोल्यूसिन तो बेसिकली देयर आर हमें कोन कहले 8टा एमिनो एसिड और एसेंशियल एमिनो एसिड प्रेजेंट बट इन केस ऑफ इन्फेंट another 9th number of essential amino acid present that is called histidine in case of infants माने बहुत छोटो पिला जो माने नॉर्मली जन्म होई थांती ताको हम छोटो पिला बोली किबा हमर इन्फेंट्स बोली हमें कहता इन्फेंट केस रे जो आउ गोटे एसेंशियल एमिनो एसिड हमको दरकार प्रोटीन सिंथेसिस करिया पई दैट इज कॉल्ड द histidine histidine have importance in case of infants और एटा होची हमरो
नाइन्थ नंबर एमिनो एसिड, नाइन्थ एसेंशियल एमिनो एसिड। बुझी पाले? तल चारटा पॉइंट। एसेंशियल एमिनो एसिड होची those amino acids which cannot be synthesized in our body. Second point, it is taken in the form of food basically. Example hochi leucine, isoleucine, methionine, etc. The number of essential amino acids present is 8, but in case of infants kimba ame kahi pariba choto pila manok case re another one essential amino acid is have a great importance, that is called histidine. सबुडाक माने एसेंशियल एमिनो एसिड माने कोन जोटा कि हमें खाद्य रु पाइतो वेरियस प्रोटीन जुत्य खाद्य जेंति कि हमरो वेरियस एग रहउची, मीट रहउची, सेइठो हम कोन पाइतो प्रोटीन पाइतो, सेइथरु ही हमें एसेंशियल एमिनो एसिड पाइतो जादर कि हमें प्रोटीन सिंथेसिस करितो। बुझि पाले? ताले नेक्स्ट हमें अब डिस्कस करिबा नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। सिंपली यार अपोजिट केतना प्रेजेंट अछि, टोटल हमर एमिनो एसिड होची 20 बेसिकली। तो आठटा जदि एसेंशियल ताले नॉन एसेंशियल केतेटा रहला 12। ताले नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड माने कोन? दीज आर द एमिनो एसिड व्हिच कैन बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी। it can be synthesized in our body। बुझी पाले? आउ दुटा पॉइंट रहला हमरो, व्हाट इज द फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू, अदर वन इज द एसेंशियल हमरो डेली इनटेक ऑफ द प्रोटीन। तो नेक्स्ट इज द फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू। तो यार फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू रहला हमरो, फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू केते? इन केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट थिला हमरो 4 किलो कैलोरी, इन केस ऑफ प्रोटीन इट इज 5 किलो कैलोरी पर ग्राम, 5 किलो कैलोरी पर ग्राम। नेक्स्ट यार डेली इनटेक केते? इन केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट हमर केते इनटेक थिला 500 ग्राम, बट इन केस ऑफ प्रोटीन द डेली इनटेक इज 70 to 100 grams per day। डेली इनटेक केते? 70 to 100 grams per day in adult। बुझि पाले? फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू केते यार? अराउंड 5 किलो कैलोरी पर ग्राम and the daily intake is 70 to 100 grams per day। तो एमिनो एसिड को बेसिकली दीटा वे डिवाइड कराला, वन इज द एसेंशियल, अदर वन इज द नॉन एसेंशियल। एसेंशियल माने जोटा कि हम बॉडी सिंथेसाइज करि परिबो नाही, इट कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन आवर बॉडी, फूड आकार रे हमें ताको नै थो, जहा दर कि वेरियस एसेंशियल एमिनो एसिड हमें पाई थो, जेंति कि ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन एटसेट्रा। अनदर नाइन्थ important essential amino acid is histidine, which is present in case of, which is have a great importance in case of infants। whereas non essential amino acid माने कोन? it can be synthesized in our body। next असला लास्ट दीटा पॉइंट, फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू होची 5 किलो कैलोरी पर ग्राम and the daily intake is 70 to 100 grams per day in case of adult। नेक्स्ट आ गोटे रहला हम ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स, दैट इज कॉल्ड द फैट। Now we'll discuss the last organic constituents of the nutrition or the nutrient is the fats। Fat is the reserve food material present inside the body। It is the first point होची, it is the reserve food material। आपन को माने थिबो मो फर्स्ट केस रे कार्बोहाइड्रेट केस रे कहितली जदी एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट अछि से फैट को कन्वर्ट करके ताको स्टोर कर रखिबो एज अ रिजर्व फूड मटेरियल। जदे बेले कार्बोहाइड्रेट प्रचुर अमाउंट नथिबो किंबा अभाव थिबो सेते बेले कोन हो? फैट पुनी ग्लूकोज को कन्वर्ट करिवो हमको एनर्जी प्रोवाइड करिवो।
तो सेति पई फैट रो फर्स्ट पॉइंट होची इट इज द रिजर्व्ड फूड मटेरियल व्हिच इज कॉल्ड फैट्स जेमती कार्बोहाइड्रेट रो सिंपलेस्ट फॉर्म कोन थिला ग्लूकोज प्रोटीन रो सिंपलर फॉर्म कोन थिला एमिनो एसिड सेमती फैट रो सिंपलर फॉर्म होची फैटी एसिड्स फैटी एसिड is the simplest form बुझी पाले सेमती बहुत गुड़ा एग्जांपल अछि फैटी एसिड रो जंती कि लिनोलेइक किंबा लिनोलेनिक एग्जांपल लिनोलेइक किंबा लिनोलेनिक एटसेट्रा बुझी पाले Third point, the physiological value is around 9 kilocalorie per gram. The physiological fuel value is 9 kilocalorie per gram. Last point, daily intake kete yara? The daily intake is around 50 grams per day. Daily intake kete yara? The daily intake of fat is 50 grams per day. In case of adult, daily intake kete 50 grams per day. In case of adults. बुझिपाले तब फैट अंडर आसला आपनकर चारटा मेन पॉइंट इट इज द रिजर्व फूड मटेरियल फर्स्ट पॉइंट सेकंड होची इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फैट इज द फैटी एसिड एग्जांपल लिनोलेइक और द लिनोलेनिक थर्ड वन द फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू इज द 9 kilocalorie per gram fourth one is the daily intake is the 50 grams per day in case of adult last point apun gasila it helps in absorption of various vitamin such as A, D, E and K it helps in absorption of vitamin A, D, E and K because these vitamins are easily soluble in the fats बुझ परछन्ते फैट रे जेहेतु ए जो विटामिन गुडा A, D, E और K इजीली soluble हे परछि सेति पय यार आ गोटे इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होछि इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द विटामिन A, D, E and K बुझि पाले ताले पांचटा इंपोर्टेंट पॉइंट हमर रहला फर्स्ट होची इट इज द रिजर्व फूड मटेरियल सेकंड होची फैटी एसिड इज द सिंपलेस्ट फॉर्म एग्जांपल लिनोलेइक थर्ड वन इज द फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू जोटे होची 9 kilocalorie per gram फोर्थ वन होची डेली इंटेक व्हिच इज अराउंड 50 grams per day in case of adult लास्ट वन इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन A, D, E and K सो आज हम डिस्कस करले बहुत बड़ क्लास हे गेला अराउंड 1 आवर क्लास हे जेछि न्यूट्रिशन द डेफिनेशन हम पढिले तापरे वेरियस तार स्टेप्स गुडा को पढिले तापरे हमर वेरियस ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे हम डिस्कस करले कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट हम डिस्कस करले नेक्स्ट क्लास रे हम डिस्कस करिबा वेरियस इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स जेमति कि मिनरल्स अछि किंबा वाटर अछि वेरियस माने नेक्स्ट टॉपिक हम सब डिस्कस करिबा न्यूट्रिशन हम कोन प्रेजेंट अछि आपण मानकर असाइनमेंट रहिला न्यूट्रिशन रो डेफिनेशन आपण लिखिबे कार्बोहाइड्रेट रो मिनिमम 5टा पॉइंट प्रोटीन रो मिनिमम 6टा पॉइंट फैट रो मिनिमम 5टा पॉइंट एति की लिखिकिना फोटोकॉपी उठेकिना मते आपण पर्सनली व्हाट्सएप कर सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्लास टुडेस क्लास विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास थैंक यू